Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope your online classes are going well. You all are completing your exercises also that we are doing in the video classes. Children, again here I am with your another video class, and this class we will be doing the exercises of chapter 1 which I have started in the previous video. Till now explanation part of this chapter is over, and comprehension part 1 comprehension is over. In comprehension there are 3 parts A, B, C that we have already completed, and we have started grammar glee. This I have explained to you in the previous video what we are supposed to do in this, and today we will be doing the exercises of grammar glee. But before that, let's have a recap of what we did till now related to this chapter. Children, as far as the explanation of the chapter is concerned, the summary is that there is a girl named Pihu, and she is telling us about herself and her mother. Pihu is 7 years old. She lives in Mumbai. She lives with her mother and younger sister. She tells us about her mother, that her mother's name is Pallavi and she is 36 years old. Her mother's hair is black, short and black, and her brown, and she has brown eyes. Pihu tells us that her eyes are brown too. Then she tells us that her mother works very hard. Her mother wakes up early in the morning because she has to cook food, because she has to get ready for her work. Then she tells us that her mother is a teacher, but she does not teach children. She teaches grown-ups, the adults. Further, she tells us that her mother comes back home at 4 in the afternoon, and while coming back, on her way, she picks up her younger sister from the play school. Then she cooks dinner, and sometime Pihu helps her mother in cooking dinner. Then she also tells us that her mother helps her with homework, and then she shares some picture also where mother is there with the younger sister. Mother is making juice, and mother is at her workplace. Then mother is helping her. Pihu is helping her mother in the kitchen. Then mother is helping her with homework. All these pictures she has shared with us. Then she tells us that before going to sleep, they all three of them, they watch TV. They either watch TV or their mother reads stories for them, read story aloud for them. And she tells that they all love stories and also like they also enjoy reading stories. She tells us that on weekends they spend time together and they do things which they enjoy doing. And sometimes they go to library also, and they select book, they choose book from there, they read book there. At times they go to cinema or theatre. Her mother likes watching play. Her mother likes music too. Pihu tells us that she does not like plays much, but she likes music. And finally she says that she is very happy with her family. She is very happy with her mother and sister. She enjoys her life with her mother and sister. This is the summary of the story. ये मैंने बहुत जल्दी आपको एक summary इसलिए बता दिया because explanation I have already given in the previous videos. जो पिछले videos है उसमें detail में मैंने सारा explain किया हुआ है. Comprehension जो है उसका A part में true false था, that we have done. B part was related to Pihu's mother. You have to write few informations related to Pihu's mother. That also we have completed. C part was related to pictures. Some pictures are there given and some words are given. You have to write the correct word below each picture. That also we have completed in the previous videos. Please वॉच दोज वीडियोज़, आप उनको ध्यान से देखिए और जितना भी एक्सरसाइज जो मैंने अभी तक करवाया है उसको आपको इंग्लिश की कॉपी में करना है. यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेज इन योर इंग्लिश कॉपी एंड यू हैव टू राइट
इन कर्सिव राइटिंग। मैंने कर्सिव राइटिंग भी आपको सिखाया है। जो स्टार्टिंग के जो इनिशियल मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने आपको कर्सिव लेटर से ही स्टार्ट किया था। कर्सिव राइटिंग आपको मैंने सिखाया हुआ है। राइट ऑल योर वर्क इन कर्सिव राइटिंग। डेली आप कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आई विल नॉट से राइट 1 पेज कर्सिव राइटिंग, बट एटलीस्ट यू कैन राइट फ्यू लाइन्स डेली। रोज आप थोड़ा थोड़ा अगर आप लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड योर राइटिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव। Children, now moving on to the exercise that we are going to do in today's video. It is Grammarly, so I'll write it here. And we are doing sentences. This is sentence, not sentences, sentence. What is sentence? That I have already explained you. Sentence हम कहते किसको हैं? मैंने आपको बताया था, I have explained you in the previous video that a sentence is a group of words together and that makes complete sense, that makes complete meaning. A sentence is a group of words put together in such a manner that it gives a complete meaning, complete sentence. Then a sentence always starts with a capital letter and it ends with full stop. It begins with a capital letter and it ends with full stop. And when a question is asked in a sentence, when there is a question, when a sentence that asks question has question mark at the end, it will not have full stop. जिस sentence में question पूछा जा रहा है, a sentence that asks question, it will not have full stop. It will have question mark. This is called full stop. This is called question mark. This is called question mark. And a sentence that expresses our feelings, our emotions, a sudden reaction of happiness or sadness, that has exclamation mark. इसको बोलते हैं exclamation mark, एक line और एक dot. A sentence that expresses our feeling, that shows our emotion, that shows our sudden reaction of happiness or surprise or shock or sadness. कुछ भी अगर हम reaction show करते हैं तो उसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, चाहे वो सैडनेस का हो, चाहे वो कोई सरप्राइजिंग चीज़ का हो, कोई शॉकिंग न्यूज़ का हो. वी यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. तो ये था सेंटेंस के बारे में. नाउ वी हैव टू डू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस. एक्सरसाइज में क्या करना है? लेट मी रब दिस एंड देन आई विल राइट द क्वेश्चन. Question is Jumble, jumble the words words and sorry, not jumble, unjumble, sorry, it's unjumble. Unjumble the words and rewrite them in correct correct order to make meaningful, sentences. Use punctuation marks, punctuation, punctuation marks.
नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले तो क्वेश्चन को ही समझना ज़रूरी है, तभी आप कर पाएंगे. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज, दैट इज कॉम्प्रीहेंडिंग द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन में करना क्या है पहले आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर लेंगे. क्वेश्चन क्या है? अनजम्बल, मतलब उल्टा पुल्टा करके लिखा है, उसको सही करना है. वर्ड आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेटर्स नहीं, वर्ड्स को आगे पीछे लिखा हुआ है, जंबल करके लिखा हुआ है. तो पहले आप उसको अनजंबल करेंगे और उसको, उन वर्ड्स को आप अरेंज करेंगे, उसको दोबारा से लिखेंगे. जैसा लिखा हुआ है वैसा नहीं लिखेंगे, उसे आप दोबारा लिखेंगे. तो रीराइट मतलब फिर से लिखना. रीराइट का मतलब होता है फिर से लिखना. राइट इज लिखना, रीराइट मतलब फिर से लिखना. ठीक है, तो आपको फिर से लिखना है करेक्ट ऑर्डर में. पहले उसको अनजंबल करना है, वर्ड्स को अनजंबल करना समझ में आया. वर्ड्स आगे पीछे लिखे हुए हैं, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना है और उनको दोबारा लिखना है. गॉट इट? सही ऑर्डर में अरेंज करके फिर से लिखना है. और ऐसे लिखना है कि उसका कोई मीनिंग बने. ऐसा नहीं कि कुछ भी, उस सेंटेंस का कोई मीनिंग बनना चाहिए. यूज पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क्स मतलब जो भी मैंने बताया आपको, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, दीज आर ऑल कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स. इनको हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं. ठीक है, कहाँ कैपिटल है, कहाँ स्मॉल है, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारे, इन सारे को कहते हैं पंक्चुएशन मार्क. तो जहाँ जो भी पंक्चुएशन मार्क लगना चाहिए वो लगाना भी है आपको. मतलब अगर सेंटेंस है सिंपल तो फुल स्टॉप लगाएंगे, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अगर कोई एक्सक्लेमेशन वाली चीज़ है, एक्सक्लेमेटरी अगर कोई चीज़ है तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको लगाना है. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. फर्स्ट सेंटेंस मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दो कलर से इसको समझाऊँ. तो दिस रेड पेन जो है वीडियो में बहुत अच्छा दिखता नहीं है, बट आई ट्राई. GARDEN, garden. IPLAY, play. To like the INA. This is the jumbled sentence. ये क्या है हमारा? jumbled sentence है. ठीक है, garden I play to like the in. So this sentence has no meaning. Garden I play to like the in. और ये सेंटेंस के रूल को भी नहीं फॉलो कर रहा है. यहाँ पे ना कोई क्वेश्चन मार्क है, ना कोई फुल स्टॉप है, ना कोई एक्सक्लेमेशन है. और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. तो आपको कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट करना है. पहला तो हमारा रूल ये है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, आई राइट इट विद द ब्लैक पेन. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है पहले कैसे करेंगे? आई लाइक टू प्ले इन द गार्डन. ठीक है, आई लाइक टू प्ले in the garden. I like to play in the garden. मुझे गार्डन में खेलना अच्छा लगता है. तो पहले क्या है? I. नंबर 2 पे क्या है? LIKE, like. 3 पे क्या है? TO2. 4 पे क्या है? Play. What is there on 5th? In. 6th number is the. And 7th number is garden. I like to play in the garden and full stop. यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे सिंपली कोई बात बोली जा रही है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये फुल स्टॉप पे ओवर होगा. यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई सडन रिएक्शन नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इसको हम फुल स्टॉप पे बंद करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे. ठीक है, आई लाइक टू प्ले इन द गार्डन. और इसका एक मीनिंग भी आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. नंबर 2. BOOK, book is WHERE, where.
Y-O-U-R. Let's see this one also. Book is where you are. कोई मीनिंग है? Book is where you are. बुक है कहाँ तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं. तुम्हारी बुक कहाँ है? We ask question. तो where is your book? कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. Where is your book? और यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है, बुक कहाँ है आपकी, तो क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. Where is your book? नंबर 3 क्या है? God my oh. G-O-D God. M-Y my O-H. Now you can see यहाँ पे ओह लिखा है. हम ओह कब यूज़ करते हैं? जब हमें कुछ एक्सप्रेस करना होता है. ओह ओह या ओ माय गॉड, मतलब ये हमारे एक्सप्रेशन को, कोई सडन रिएक्शन को ये शो करता है. तो हम गॉड माई ओह नहीं बोलते, ओ माई गॉड बोलते ना, शॉकिंग. ओ माई गॉड क्या है? ये रिएक्शन है, सडन रिएक्शन, हमारा एक्सप्रेशन है. तो स्टार्ट किससे होगा? ओ से. ओ माई गॉड. और ये क्योंकि इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ओ माई गॉड. ओ माई गॉड. यहाँ पर क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ओ माई गॉड. ठीक है. कभी कभी आप देखेंगे कुछ सेंटेंस में आप ओ के बाद भी एक्सक्लेमेशन होता है. ठीक है. वो सिर्फ अगर उतने पर ही हमारा एक्सप्रेशन रुक जाता है तो ओह, पर यहाँ पर ओ माई गॉड पूरा सेंटेंस के साथ है. तो ओ माई गॉड ये एक एक्सप्रेस कर रहा है हमारे सडन रिएक्शन को. ओ माई गॉड. तो ये ओ माई गॉड रिवर्स में. ठीक है. नोट डाउन दिस, इसको नोट कर लीजिए. सो देन आई विल गिव यू रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. बाकी के सेंटेंस करेंगे. डू दिस वन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके वीडियो इसको कॉपी कर सकते हैं. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. स्टूडेंट, सच सेंटेंसेस नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. ये जो होता है ना, अभी जो सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है और फिर उसको रीराइट करना होता है. अरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड रीराइटिंग ऑफ सेंटेंसेस, these टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत करनी पड़ी होगी, क्योंकि उसका कंप्लीट मीनिंग भी तो बनना चाहिए ना. तो अभी आप बहुत छोटी क्लास में हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये करना आ जाएगा. ठीक. तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप बस देखिए कि कैसे करना है और फिर खुद से ट्राई कीजिए. पहले देखिए कि आप खुद से कितना कर पाते हैं. ओके. नेक्स्ट इज नंबर 4. नंबर 4 क्या है? 4 है LATE, लेट. RUY, थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा ना. लेट RUY, इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ सेंस आप निकाल सकते हो कि एक्चुअली इसमें कहना क्या चाह रहे हैं. लेट RUY, वाई है मतलब कुछ क्वेश्चन तो होगा ही. तो क्वेश्चन हम पूछेंगे ना, तो इसमें क्या आएगा? वाई आर यू लेट. वाई आर यू लेट? आप लेट क्यों हो? वाई आर यू लेट? ओके. तो इसके लिए लिखेंगे हम, कैपिटल से स्टार्ट करना है. वाई आर यू लेट. एंड ये क्वेश्चन मार्क है लगाएंगे क्योंकि ये एक क्वेश्चन है. वाई आर यू लेट. ठीक है. नंबर 5. there is one more sentence to be rearranged. This is number 5. One,
MATCH, match, the HURRAH. Now one we match the hurray. हुर्रे हम कब बोलते हैं? हुर्रे कब बोलते हैं? जब हम कुछ हैप्पीनेस वाला एक्सप्रेशन दिखाते हैं, रिएक्शन देते हैं हैप्पीनेस का. हुर्रे वी वन द मैच. तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन कहाँ पे आ रहा है? हुर्रे. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ. बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आर नॉर्मल सेंटेंस. तो हम यहाँ लिखेंगे HURRAH, हुर्रे वी won the मैच. मतलब हुर्रे से स्टार्ट होगा, फिर 2, 3, 4 and 5. हुर्रे ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क. हुर्रे वी वन द मैच, फुल स्टॉप. ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा हैप्पीनेस का, हुर्रे, और फिर वी वन द मैच. खुशी के को हम यहाँ पे बता रहे हैं. नेक्स्ट इज बी पार्ट ऑफ दिस ग्रामरली. ये भी सेंटेंस से रिलेटेड है. ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप वाला ही एक्सरसाइज है. इसमें करना क्या है वो मैं आपके लिए पहले बता देती हूँ. इन द पैराग्राफ बिलो, मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ है. पुट अ फुल स्टॉप, आपको फुल स्टॉप लगाना है. अ क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एक्सक्लेमेशन मार्क वेयर नीडेड, जहाँ ज़रूरत है वहीं. यानी कि कहीं भी फुल स्टॉप लगा दिया, कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, कहीं भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं, ऐसा नहीं. जहाँ जो ज़रूरी है, वेयर नीडेड, जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाइए, जहाँ क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाइए, और जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत है वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए. गॉट इट? तो इस एक्सरसाइज को भी हम अभी कर लेंगे. पहले मैं इसका आपको पैराग्राफ, मुझे क्योंकि लिखना पड़ेगा एक्सप्लेन करने के लिए, आई विल राइट दिस पैराग्राफ एंड देन आई विल टेल यू वेयर टू पुट व्हाट. ठीक है, इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ. फर्स्ट यू लुक एट इट. आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूँगी. ठीक, चलिए, लेट मी इरेज दिस नाउ. इफ यू हैव नोटेड डाउन, आई विल इरेज इट. Let me erase this. I'll write the question here so that it will be easy for you to understand what I want to explain. थोड़ा ये मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, but that is worth. क्योंकि समझाना, आपको समझना इजी हो जाएगा और मुझे समझाना भी थोड़ा इजी हो जाएगा. It is B. It is given on page number 14 of your book. ठीक है, क्या लिखा है? In the PARAGRAPH, in the paragraph below. पैराग्राफ तो आपको पता है ना, चैप्टर्स में जो होते हैं पैराग्राफ. पुट अ फुल स्टॉप, आपको फुल स्टॉप भी लगाना है. QUESTION, क्वेश्चन, MARK, मार्क, और EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क, वेयर नीडेड. इन द पैराग्राफ बिलो, मतलब जो नीचे पैराग्राफ दिया है पेज नंबर 14 पर, उसमें आपको पुट अ फुल स्टॉप, एक फुल स्टॉप लगाना है. एक नहीं, मतलब जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है जहाँ जहाँ जो जिसको लगाना है. मैंने आपको अभी सेंटेंस के रूल बताए थे ना. सिंपल सा सेंटेंस है, कैपिटल से स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप पे वो एंड होगा. क्वेश्चन वाला अगर सेंटेंस है, कैपिटल से स्टार्ट होगा, एंड में क्वेश्चन मार्क होगा.
सडन रिएक्शन, फीलिंग, एक्सप्रेशन वाला होगा तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। उसी रूल से रिलेटेड ये पैराग्राफ है, मतलब ये भी सेंटेंस से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम ग्रामर में भी सेंटेंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा है, जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, IFOUND फाउंड अ KITTEN kitten, BELOW my BED bed, THIS this, MORNING. Now you can see I found a kitten below my bed this morning. ये सेंटेंस में कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कोई ऐसा सडन रिएक्शन है, ओ माई गॉड आई फाउंड अ कैट, ऐसा कुछ तो नहीं है। सिंपल एक बात बताई जा रही है कि आई फाउंड अ किचन बिलो माई बेड दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह मुझे अपने बेड के नीचे एक किचन मिली। फाउंड मतलब मिली, मिलना। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, आई फाउंड ए किटन बिलो माई बेड दिस मॉर्निंग, मुझे अपने बेड के नीचे एक किटन मिले। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं ना किटन। What a cute animal it was. ये जहाँ हम जो लगा रहे हैं ना, मैं उसको अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमने लगाया फुल स्टॉप, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। जहाँ भी आपको ये पंक्चुएशन मार्क लगाना है ना, वहाँ पे डॉट डॉट बने हुए हैं। उसके बाद है What a cute animal it was. What a cute ANIMAL it was. अब यहाँ देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे ना, जैसे ऐसे ऐसे बना हुआ छोटे छोटे 3 डॉट है, मतलब यहाँ पे आपको पंक्चुएशन लगाना है। अब आप सेंटेंस देखिए, What a cute animal it was. कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, What a cute animal it was. What a cute animal it was. एक्सप्रेशन आता है ना, तो ये हमारी फीलिंग दिखा रहा है। हम एक जब हमने किटन देखी तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा चीज़ है, तो कितनी क्यूट है, ऐसा बोलते हैं ना। कोई पपी देखते हैं तो भी बोलते हैं तो कितना क्यूट है, तो हमारा रिएक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आ रहा है, व्हाट अ क्यूट एनिमल इट वाज, तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, व्हाट अ क्यूट एनिमल इट वाज। नेक्स्ट है बट where did it come from. It come from, but where did it come from. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर ये आई कहाँ से। बेड के नीचे किटन दिखी ना, तो अब सोचेंगे ना, पर ये आई कहाँ से आई। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पर ये आई कहाँ से, ये हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। बट वेयर डिड इट कम फ्रॉम, ये कैसे यहाँ पर आई। समझ में आ रहा है ना आपको, किस तरह से सेंटेंस के साथ हम मार्क भी लगाते जा रहे हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाते जा रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है ना। या मैंने जैसा बोला था कि मैं जहाँ मैं पंक्चुएशन लगाऊंगी वहाँ मैं रेड से मार्क भी कर दूंगी। यहाँ सिंपल सेंटेंस था इसलिए फुल स्टॉप, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन, एक रिएक्शन शो किया इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर डिड इट कम फ्रॉम, तो ये एक क्या है, क्वेश्चन है। गॉट इट, समझ में आया आपको। तो इसी तरह से जो भी हमारा जो पैराग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपको इसी तरह से सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि एक सिंपल सेंटेंस है, कि क्या ये कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, या ये कोई रिएक्शन, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस है। अकॉर्डिंगली फिर हम सेंटेंस में वो मार्क्स लगाते जाएंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई PICKED picked, ITHUPR
A-N-D, and H-E-L-D, held it close to me. C-L-O-S-E, close. T-O-2-M-E, me. अब ये एक सेंटेंस है, इसमें क्या करना है ये देखिए, I picked it up and held it close to me. मैंने उसे उठाया और अपने पास पकड़ लिया. I picked it up, मैंने उसे उठाया, and held it close to me, फिर अपने एकदम पास उसको पकड़ा. यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग, एक सिंपल बात मैं बता रही हूँ कि मैंने उठाया उसको और अपने से पास पकड़ लिया, क्लोज टू मी. तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप. वेरी गुड. यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, यहाँ पे सडन रिएक्शन नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि हम मतलब इसको हमने उठाया और अपने पास रख लिया. ठीक है, इतना आपको समझ में आया? गॉट इट? तो अभी सेंटेंस, अभी हमारे पास और भी इस कंटिन्यू हो रहा है ये पैराग्राफ. इसमें काफ़ी सारे अभी पंक्चुएशन मार्क्स बाकी हैं जो हम धीरे धीरे इसको हम करेंगे, पर आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. इतना अगर आप देख लीजिए, इसको मैं अंडरलाइन भी कर देती हूँ. ये हमने कुछ पंक्चुएशंस कर लिए, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क एंड अगेन फुल स्टॉप. यहाँ तक आप करके रखिए, बुक में करके रखिए. डू इट इन द बुक. इसको कॉपी में नहीं करना है, बुक में आप यहाँ तक करके रखिए. और बाकी जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसको ट्राई कीजिए कि इसके आगे का कि आपको आता है कि नहीं. इसको मैं कंटिन्यू करूँगी अपने अगले वीडियो में से, कंटिन्यू मैं करूँगी, लेकिन तब तक आप खुद से देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं. बट आई विल डू दिस, आई विल फिनिश दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. इस आज के वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, डू प्रैक्टिस. कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है, आई एम देयर फॉर यू इन द ऑनलाइन क्लास. यू कैन क्लियर योर डाउट्स ओवर देयर. ओके, थैंक यू.